Hello students, in today's class we will see the next topic. Okay, now in the previous class we have started, that is the chapter electrostatic, and in that we have seen the introduction portion, then what is the electric charge, how the charge it is developed. Okay, that we have seen it. At the same time we have seen that is the conduction as well as the induction process also. Now next we will see, that is the 10.3, that is the basic properties of the electric charges. Now basic property of electric charges, and it is given, that is the additive nature of the charge. Now additive, it word indicate that there is a process of addition or okay. So see what he says, that the electric charge is the additive similar to the mass. Okay, कि मास जैसे हम लोग ऐड करते जाते हैं, इन द सिमिलर वे देर इज द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो एडिटिव. ओके, एडिशन इज टेक प्लेस इन दैट नाउ, एंड बिकॉज ऑफ दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज on an object is equal to the algebraic sum of all the electric charges distributed on the different part of the object. So if we will consider there is one object, on that object the charge it is distributed in the different parts. Okay, पूरे distribute है तुम्हारे charges, and if we will take the addition of all that charges, that means that is the algebraic sum of all the charges. So it says that the total electric charges. Now in the second, what he says, that it may be noted while taking the algebraic addition, it should be noted that the charge it may be the positive or negative. Okay, so when we are consider the algebraic summation, at that time positive or negative charge while taking the addition we have to keep in mind. Okay, so if the two bodies सारे positive और सारे negative हम लोगों ने ऐड कर दिए, तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट, इफ द टू बॉडीज हैव द टू इक्वल एंड अपोज, तो एक दो बॉडी डेवलप्स हो जाती है, वी कैन से दस द टू बॉडीज हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम. तो पूरा दो बॉडीज़ है और एक सिस्टम में दो बॉडी कंसीडर की गई है, और उन दो बॉडीज़ में देर वन इट इज़ अ टोटल पॉजिटिव, अनदर वन इट इज़ अ टोटल निगेटिव, एंड इफ वी विल टेक द एडिशन ऑफ बोथ this two bodies, so at that time what will happen, that there is a ज़ीरो चार्ज विल बी करा. सो पूरे उस सिस्टम में कितना मिल रहा है हम लोगों को, नेट चार्ज, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके, नाउ इट इज़ कंसिडर दैट इट कंपेयर विथ एन एटम. जैसे हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लास में कि एक एटम होता है, इट हैव द न्यूक्लियस विच इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, एंड सिमिलरली in an orbits there is a negative charge, but both positive and negative both are equal in magnitude, and that's why he says that atom it is a electrically neutral. Okay, and similarly he says that कि एक object है वो क्या हो जाता है तुम्हारा, कि it have the zero charge. Getting? Now again he says that it is interesting to compare the additive property of charge with the mass. उसने बोला है कि और ये to compare करना है कि additive property of charge की किसके साथ में, मास के साथ में. Now again we will consider an object. एक object develop करने के लिए what happens, the mass it is added. Suppose एक ऑब्जेक्ट डेवलप होने के लिए हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग नंबर ऑफ द पार्टिकल्स. ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव. जब हम लोग पार्टिकल्स उसमें ऐड करते जाते हैं तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. सारे मासेस ऐड करें, वी आर टेकिंग दैट इज़ अ पॉजिटिव. बट वेन एवर वी charge it is, as the charge it is distributed over an object, at that time what will happen, the charges it may be the positive, negative. ओके, तो चार्ज हमारे पॉजिटिव भी रहते हैं और निगेटिव भी रहते हैं जब एक बॉडी के लिए हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट देख रहे हैं. तो रिमेंबर, मास इट इज़ ऑलवेज इन अ पॉजिटिव. हम ऐड करते जा रहे मतलब उसमें डाल रहे तो पॉजिटिव ही हुए. बट एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट में चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, देयर इज़ अ पॉजिटिव और द नेगेटिव. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस वी कैन सी.
Now the second, the total mass of an object is always positive. मास हमेशा क्या होता है, बढ़ते जाता है, एंड दैट्स वाई द टोटल मास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वेयर एज द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी पॉजिटिव, ज़ीरो और द नेगेटिव. तो जब हम लोग टोटल चार्ज की बात करते हैं, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, इट मे बी द पॉजिटिव, इट मे बी द नेगेटिव. अगर दोनों इक्वल रहे पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या हो सकते हैं, देयर मे बी द ज़ीरो ऑल्सो. ओके. So student, we have seen how the charge, it have the additive nature of the charge. At the same time, in the next he has given one experiment, that is the gold leaf electroscope. Now what is present in this gold leaf electroscope, ये एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट टू डिटेक्ट द चार्जेस. ओके, इफ़ यू आर कंसिडर एनी ऑब्जेक्ट, on that object whether the charge is present or not, and for that this instrument it is used, it is called as the gold leaf electroscope. Now see what it is, says that this is a classic instrument for detecting the presence of the electric charge. Okay, फॉर द प्रेजेंस ऑफ द डिटेक्ट करना है क्या कि उसके ऊपर चार्ज है कि नहीं. नाउ फॉर दैट व्हाट ही हैज़ टेकन, दैट इज़ कैसे उसका कंस्ट्रक्शन दिख रहा है. ओके, नाउ अ मेटल डिस्क इज कनेक्टेड टू द one end of the, now see here what he says that कि suppose we are taking, this is one metal disc, एक हमारे पास में metal disc है. now this metal disc it is connect, this is simple, I just what I feel in mind that वी हैव ड्रॉन इट. तो ये मेटल डिस्क जो है एक रॉड को जो कंडक्टर दिख रहा है. ओके, तो इसके एक एंड को इट इज़ कनेक्टेड है. यहाँ पे एक स्टार्टिंग में थोड़ा सा इट इज़ इंसुलेटेड है, बट इट इज़ कनेक्टेड विथ अ कंडक्टर. एंड एट द अनदर एंड, दूसरे एंड पे क्या हो रहा है, देयर इज़ अ वन गोल्ड लीफ. ये तुम्हारा गोल्ड लीफ, एक तो दो भी हो सकती है गोल्ड लीफ, और इट इज सेज दैट कि देयर इज अ, ये कंडक्टर का ही पीस है और दूसरा उसको एक छोटा गोल्ड लीफ अटैच किया हुआ है. ओके, नाउ सी वी विल रीड इट. अ मेटल डिस्क इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ अ नैरो मेटल रॉड. डिस्क कहाँ पे कनेक्टेड है, एक रॉड है तुम्हारा उसके एक एंड में. ओके, नाउ द थिन piece of the gold leaf is fixed to the another end. तो दूसरे एंड पे क्या है तुम्हारा गोल्ड लीफ का छोटा पीस, इट इज़ कनेक्टेड. नाउ द होल इंस्ट्रूमेंट, नाउ दिस होल पार्ट, दिस कंप्लीटली इट इज़ इंसुलेटेड. ये क्या किया है उसने, पूरा इंसुलेट किया है कि बाहर के एयर का उसके ऊपर भी कुछ भी इफेक्ट न हो. Okay, and for that the whole instrument, that is the electroscope, it is insulated from the body of the instrument. मतलब उस पूरे इंस्ट्रूमेंट को ही उसने इंसुलेटेड किया है. नाउ जो फ्रंट है पूरा एक बॉक्स ऐसे किया है और उसको इंसुलेट किया है, बट जो फ्रंट पोर्शन है, नाउ सी हियर, नाउ द फ्रंट पोर्शन, ओके, नाउ द फ्रंट पोर्शन अ ग्लास फ्रंट प्रिवेंटेड, ग्लास का बना हुआ है. क्यों, इट प्रिवेंट द एयर ड्राफ्ट बट अलाउ टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द चार्ज ऑन द लीफ. तो पूरा ग्लास का होने की वजह से पूरा तीनों साइड क्या है, पूरे चारों साइड से वो इंसुलेटेड है, बट फ्रंट साइड क्या है, इट इज़ covered with an glass, so that whatever the effect will happen on that gold leaf, that we can observe easily. At the same time whatever the एयर ड्राफ्ट और अदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो उसके ऊपर में डिस्टर्ब ना हो, दैट्स वाई इट इज़ शोन. ओके, सो येस व्हाट हैपन कि देयर इज़ अ डिस्क, at the one end it is connected to the disc constructed, and the another it is attached with a gold leaf, and this completely it is insulated, पूरा इंसुलेट किया है उसने. और इंसुलेटेड करते हुए उसने जो फ्रंट पोर्शन है, सामने वाला फ्रंट पोर्शन उसने पूरा ग्लास का दिखा है. वाई ही हैज़ शोन, बिकॉज कि वॉट एवर द इफेक्ट विल बी हैपन व्हेन द चार्ज बॉडी इट इज़ kept here or bring here, so whatever the effect will happen with this gold leaf, that we can very easily observe. Okay, so in this first
paragraph he told in this way. Now in the second part he say when a charge is put, जो हमारे पास में डिस्क है, यहाँ पे हम लोगों ने सपोज ही सेज दैट कि इफ अ चार्ज इज पुट, इसके ऊपर में हम लोगों ने चार्ज पुट कर दिया at the top, it will, what will happen, it is spread out, पूरे स्प्रेड होंगे एंड इट विल फ्लो डाउन टू द प्लेट एंड द लिफ मूव्स अवे फ्रॉम द प्लेट. यानी ये पूरी हमारी कंडक्टर है, तो ये जो दिख रहा है पूरे हम लोगों ने इसके ऊपर में चार्ज डालने के बाद में वो स्प्रेड हो जाएगा और स्प्रेड होते इट विल बी फ्लो डाउन. ये पूरे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, और फ्लो हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, सपोज वी आर टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो पूरे यहाँ पर पूरे पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ कनेक्टेड एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस के साथ में तुम्हारा गोल्ड लिफ भी अटैच है, तो यहाँ से जाते समय वो यहाँ पे भी गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, द इक्वल चार्ज विल बी सेम चार्ज विल बी इन दिस गोल्ड लिफ. ओके, गोल्ड लिफ में भी सेम चार्ज डेवलप हो गया है, एंड दैट्स वाई व्हाट विल हैपन, दिस गोल्ड लिफ इट विल बी रिपेल्ड. वो क्या हो रहा है, ऐसे रिपेल्ड हो जाएगी. पहले इनिशियली ऐसी इस पोजीशन में होगी जो ऐसे पोजीशन में होगी. ओके, बट जब उसके ऊपर में चार्ज आ जाता है एट दैट टाइम ये तुम्हारी जो गोल्ड लिफ छोटी दिख रही है वो क्या हो जाएंगी, रिपल्ड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से. तो देयर इज़ अ रिपल्शन विल हैपन. व्हाई दिस रिपल्शन, बिकॉज द चार्ज विच इज़ flow from this conductor and that equally it gets to the gold leaf, and this process we says that this is a near about conduction will happen. Okay, now what he says that the leaf can be make टू फॉल अगेन. अब उसमें जो कंडक्शन हो गया है, रिपल्शन दिखा रहा है, अगेन ही सेज दैट कि अभी यहाँ का जो चार्ज है उसको पूरा डिस्चार्ज करने के लिए व्हाट वी कैन से वी कैन डू बाय टचिंग द डिस्क. हमने उस डिस्क को टच करने से भी वो पूरा डिस्चार्ज होगा. एट द सेम टाइम दिस इज़ डन बाय द अर्थिंग. जो इलेक्ट्रोस्कोप है तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोस्कोप है, उस इलेक्ट्रोस्कोप में एक पोजीशन होती है अर्थिंग की, और अर्थिंग से व्हाट विल हैपन, द चार्ज विच इज़ डेवलप जो हमने यहाँ पे पुट किए थे वो पूरा डिस्चार्ज पूरे नीचे अर्थिंग में चले जाएगी. ओके, एंड दैट्स वाई व्हाट विल से दिस इलेक्ट्रोस्कोप अब पूरे फिर से न्यूट्रल पोजीशन में आ गया है. ओके, सो ही सेज दैट अर्थिंग द अर्थ टर्मिनल प्रिवेंट्स द केस फ्रॉम द अकोमोडेटिंग एनी स्ट्रे चार्ज. मतलब उसमें थोड़े भी कहीं जमा रहने की गुंजाइश नहीं रहेगी. ओके, ना इन दिस द इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज इन टू वेज. वो बदल रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्कोप तुम्हारा है वहाँ से हम ये देर इज़ अ टू प्रोसेस बाय द कॉन्टैक्ट. फर्स्ट इज बाय द कॉन्टैक्ट एंड सेकंड बाय द कंडक्शन. नाउ हाउ, फर्स्ट बोल रहा है बाय द कॉन्टैक्ट. अब कॉन्टैक्ट मतलब हमारे पास में ये तुम्हारे मेटल डिस्क है, इस मेटल डिस्क के पास में हमने एक चार्ज बॉडी सिंपली हमको एक चार्ज बॉडी है और हमको डिटेक्ट करना है कि इसके ऊपर में चार्ज है कि नहीं है. तो जो पहले प्रोसेस होती थी कि हम लोग ग्लास रॉड लेते थे और एक सिल्क क्लॉथ लेते थे, उसको रब करते थे, और उन दोनों को फिर हम लोग एक थ्रेड से लगा के फिर दूसरे एक चार्ज बॉडी से उसके पास में अगर दोनों लाइक रहेंगे तो क्या होते थे, रिपल होते थे, अनलाइक होते तो पास में आते थे. तो दैट इज़ द वन प्रोसेस. तो हमको पता है कि जब रबिंग से भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते थे, बट इट इज़ नॉट सो इफेक्टिव, एंड दैट्स वाई द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इट इज़ डेवलप. नाउ इन दिस वॉट ही सेज दैट बाय द कॉन्टैक्ट, यानी एक हमने चार्ज रॉड लिया है और इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द डिस्क. डिस्क के इसमें हम लोगों ने कॉन्टैक्ट में कर दिए. कॉन्टैक्ट में कर देने के बाद में क्या हो रहा है, नाउ जो चार्ज इस रॉड के ऊपर में जो चार्ज डेवलप है वो चार्ज इसके यहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है. ओके, नाउ इट इज़ ट्रांसफर्ड टू, जो चार्ज डेवलप हुआ है इट इज़ ट्रांसफर्ड. पहले तो यहाँ पे आ जाए तुम्हारा डिस्क में, डिस्क फिर क्या हो रहा है, तुम्हारा जो रॉड है, कंडक्टर है, उसमें ट्रांसफ़र होते जा रहा है.
ओके और कंडक्टर से ट्रांसफ़र होके एट द सेम टाइम तो लिफ में भी पहुंच रहा है एंड दैट बाय द रिपल्शन इज हैपन्स. तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड दैट वी कैन से इट इज़ अ कंडक्शन मेथड. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट द डिस्क एंड द चार्ज इट इज़ ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप जो पूरा दिख रहा है इसको इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोस्कोप ही बोला है. तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है तुम्हारे चार्जेस एंड द मेथड गिव्स द गोल्ड लीफ द सेम चार्ज एज दैट ऑफ द कंडक्टर. एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ द charging the electroscope, but he says that it is not so effective method. Okay, and that's why what he did, he again tried second method, that is the by the induction. Okay, so in the previous class I told how the induction processes happen. Okay, similarly induction is happen here also. What happen, a charge rod, हमारे पास में एक चार्ज रॉड है, जो हमारे पास एक चार्ज रॉड है. what will happen, we will bring it near to the disk. डिस्क के पास में लेके हम उसको टच नहीं करेंगे. पहले इसमें क्या हो रहा था, कंडक्शन में हम इसको टच कर रहे थे और टच करने के बाद में जो चार्ज रॉड है तुम्हारा या तो चार्ज बॉडी है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रही थी डिस्क में और डिस्क से ट्रांसफ़र होके क्या हो रहा था, कंडक्शन प्रोसेस से पूरे लिफ्ट तक पहुंच रहा था, प्लेट्स तक पहुंच रहा था. और दैट्स वाई एज इट हैव द सेम चार्जेस वो तुम्हारे लिफ्ट क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी. इन दिस केस इंडक्शन, सपोज हमारे पास में ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या तो निगेटिव चार्ज है. अगर पॉजिटिव हम लोग इसके पास में जो रॉड है, दिस इज़ द रॉड एंड इट हैव द पॉजिटिव होने के बाद में हमारा जो कंडक्टर है, कंडक्टर यस, तो कंडक्टर जो हमारे पास में यहाँ पे दिख रहा है ना, इस कंडक्टर में ये इनिशियली न्यूट्रल पोजीशन में है. तो न्यूट्रल में होने के बाद में भी यहाँ पे जब चार्ज बॉडी ले आते हैं तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है व्हाट विल हैपन, इट गोज़ टूवर्ड्स द डिस्क. मतलब यहाँ पे पास में क्या हो जाएंगे तुम्हारे सारे निगेटिव जमा हो जाएंगे. ओके, और यहाँ पे अवे में क्या हो जाता है, जैसे हम लोगों ने इंडक्शन में देखा था कि अवे में जो हमारे पास में चार्ज बॉडी है तो सेम चार्ज इट इज़ डेवलप ऑन द अवे साइड. ठीक है, तो अवे साइड में हमारे सेम चार्ज, यहाँ पे पास में ये पॉजिटिव है तो पास में निगेटिव डेवलप हो रहा है. और जो हमारे पास में कंडक्टर है, कंडक्टर होने के बाद में जो लिफ्ट चार्ज है यहाँ पे क्या डेवलप हो रहे हैं, तुम्हारे सेम मतलब इस चार्ज बॉडी में जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वहाँ पे हमने रखा है तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव जमा हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव जमा हो जाएंगे. ओके, तो एज इट हैव द सेम चार्जेस एंड दैट्स वाई व्हाट विल हैपन, अगेन द लिफ्ट इट विल बी रिपल्ड. और रिपल्ड हो रहा, इस पर से हमको समझ में आ रहा है कि ये जो बॉडी है इट इज़ अ चार्ज बॉडी. ओके, तो अगर सपोज हमने बिना कोई चार्ज किया हुआ बॉडी रखते हैं तो इज़ इट पॉसिबल कि ये तुम्हारे पास में जो गोल्ड लीफ है इट विल बी रिपल्ड और इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट इन पोजीशन, मतलब कोई रिपल्शन नहीं होगा, मतलब सीधा एक इस पोजीशन में रहेगा, इस पोजीशन में. और जब रिपल होता है तो इस पर्टिकुलर कंडक्टर के साथ में अटैच है तो ये क्या होता है, रिपल होने की वजह से इस पॉइंट से दूर हो जाता है. ओके, तो एक नॉर्मल कि बिना चार्ज हुई बॉडी हम लोग लेते हैं और एक चार्ज हुई बॉडी लेते हैं तो इस लिफ्ट में हमको जो प्रोसेस दिखती है, इफ़ेक्ट दिखता है. सो दैट इफ़ेक्ट इट इज़ फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम show how the charges spread over the plates and the gold leaf in the different condition.